I am glad that you had confidence in me that I might be able to pull it because I didn't had the confidence in me while I was giving my mock interview. But I'm really glad. Finally, you did it. Yeah. Yes. Congratulations for social epidemiology selection. Thank you. Thank you, sir. कैसा लग रहा है टेस्ट में जाके? बढ़िया है, अच्छी फीलिंग आ रही है अभी तो ऐसे नए 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 है तो इट्स ग्रेट, इट्स गोइंग ग्रेट एज ऑफ नाउ. ओके ओके, नाइस नाइस. Environment is very peaceful and it's actually going great as of now. ओके ओके, Teachers are actually really, supportive. Like नाइस. the culture is different. Culture is different. Culture is important. बिल्कुल. You're in Mumbai campus, right? Yeah, I'm in Mumbai campus. Nice. Okay, so you were in the TIS relay batch online 2.0, second Yes. batch में the TIS के. Okay okay. Yes, yes. So I think ये start हुई है relay around October November, अगस्त एंड में थोड़ा सा. August end में. Okay, हम्म. nice nice. अगस्त एंड में ज्वाइन किया था. Okay. Yes. So Harjot, we'll be talking about complete, we'll be having complete insight about the course campus और कैसी चल रही है लाइफ टिस के अंदर. और दूसरा एस्पेक्ट है टिस का सीवीटी पीजी का प्रिपरेशन एंड द सिलेक्शन प्रोसेस. ये दो चीजें डिस्कस करेंगे. दैट इज व्हाट द एजेंडा ऑफ टुडे सेशन. एंड बिफोर वी स्टार्ट, we I mean there's an introduction part. So about yourself, which state city you belong to, how this idea came into the picture, and yeah, so all this thing, let's start with this. So myself, Dr. Harjot Kaur Sandhu. I actually belong to Punjab and I did my graduation in Bachelor's of Ayurveda in Medicine and Surgery from Punjab itself. So TIS was nowhere in my dreams also when I was actually pursuing BMS. So one fine day during my internship, I was actually working in a hospital and I didn't actually like the kind of work that I was doing of a medical officer. That was basically a messenger kind of a job and I was not really interested in that. So I met a person and she told me to do this MHA or MPH from TIS. That's how I came to know about TIS. Okay, there is something called TIS and they do provide MHA and MPH programs. उससे पहले मुझे इतना नहीं पता था कि टिस का भी कुछ है. आई वॉज एक्सप्लोरिंग मोर ऑप्शंस इन पंजाब इटसेल्फ. Okay. So that's how I came to know of TIS. I came to know of TIS in July, but I actually dropped the idea of joining TIS because I thought कि मेरा मैथ्स और क्वांट और ये लॉजिक तो बहुत वीक है, तो मेरे से तो नहीं हो पाएगा. I dropped the idea, but then again I found courage. तो मैंने while I was searching कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, I came across Maneuver. So I think that's how my journey started of TIS, and I think it's been beautiful after all. Nice nice. पंजाब तो काफी बड़ा है, so Yeah. पंजाब में कहाँ से? पंजाब में I belong to Mohali. मोहाली. It's the IT sector. Okay बहुत बड़ा नहीं है मोहाली, but it's the IT sector. That's where I belong. But my okay, roots are from Amritsar. nice nice. Hmm. So फील्ड वर्क पे जो एक्सपीरियंस था Hmm. वो कितना अभी हेल्पफुल हो रहा है कोर्स परसीव करने में? एब्सोल्युटली मुझे ऐसा लगता था आई हैव ऑलवेज अंडर एस्टिमेटेड माई सेल्फ. तो जब आपके साथ और बाकी मेंबर्स के साथ मेरे हुए थे ना इंटरव्यूज भी, आई हाँ. रियली अंडर एस्टिमेटेड माई सेल्फ एंड यू वर द वन हु एक्चुअली पुश्ड माई बाउंड्रीज एंड यू सेड नो यू कैन डू इट. आई थिंक दैट्स हाउ इट्स गोइंग हियर एज वेल बिकॉज बहुत डाइवर्स कल्चर है यहाँ पे. दे आर पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड, वेरियस सिटीज, और सब एवरीबडी इज सो कॉन्फिडेंट इन देमसेल्फ. आई थिंक उसी से मुझे अपना करेज मिलता है कि ओके आई एम ऑल्सो नो लेस बिकॉज टेस्ट में आना आपस अब खुद में ही बहुत बड़ी बात है. तो आके यू एक्चुअली फील ओके यू हैव डन समथिंग, दैट्स व्हाई यू आर हियर. करेक्ट. सो बैच साइज अभी अब कितनी की है बैच साइज? बैच साइज इन्होंने इंक्रीज किया है. लास्ट ईयर 29 था, अभी हमारा 34 का हुआ है बैच ओके. साइज. और मुंबई महाराष्ट्र से कितने लोग हैं और अदर स्टेट सिटी से कहाँ कहाँ से लोग? डाइवर्सिटी क्या है? एग्जैक्ट नंबर्स अब मुझे नहीं याद है, बट मुंबई से महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग हैं. लाइक
I would say roughly approx 10 to 12 people are from Maharashtra itself. लाइक Second मुंबई number पे, पुणे नागपुर या यहाँ से? yeah, Mumbai, Pune, Nagpur, mostly from Nagpur. नागपुर, ओके। Mostly from Nagpur and then Pune. And then I think second highest जो बच्चे हैं इस स्टेट के वो है वेस्ट बंगाल के. ओके। Yeah, these two states have the highest prevalence अभी तक. हम्म। तो ये कोर्स वेस्ट बंगाल वाले ज्यादा परस्यू करते हैं? शायद, बट बहुत सारे बच्चे हैं हमारी क्लास में और हमारे पूरे कोर्स में. हेल्थ पूरा जो सिस्टम हेल्थ सिस्टम स्टडीज है उसमें वेस्ट बंगाल के बहुत सारे बच्चे हैं. ओके, नाइस नाइस। एंड हाउस द लेक्चर्स क्लास गोइंग ऑन? दे रूटीन आर क्या होता है क्वाइट. पूरा दिन का? स्केड्यूल तो काफी टाइट रहता है यहाँ पे. 9 to 6 के टाइमिंग्स हैं और बैक टू बैक क्लासेस लगती हैं, बट द प्रोफेसर्स आर क्वाइट सपोर्टिव, तो मैनेज हो जाता है. अभी जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है सबको, बिकॉज सबके बैकग्राउंड्स बहुत अलग है और यहाँ का टीचिंग स्टाइल बहुत अलग है बाकियों से, जहाँ से मैं पढ़ के आई हूँ, या आई एम प्रीटी श्योर कि बाकी जो एस्पिरेंट्स अगर देखेंगे तो आई थिंक बहुत अलग है. यहाँ पे इंक्लूसिव एनवायरनमेंट है और डिस्कशन को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है यहाँ पे, रादर देन वो जो हम हमेशा से करते हैं ना, रट्टाफाइंग थिंग्स, रोट दैट लर्निंग। इज नॉट प्रमोटेड हियर. थोड़ा और इलाबरेट करो इसको, क्या डिफरेंट है कंपेयर टू द स्टैंडर्ड लर्निंग, स्टैंडर्ड टीचिंग से? So I can say for myself, क्योंकि मोस्ट ऑफ माय स्कूलिंग एंड एवरीथिंग इज फ्रॉम पंजाब इटसेल्फ. तो वहां पे ऐसा होता था, इंटरैक्टिव क्लासेस बहुत ज्यादा नहीं होती थी. नॉट टू डिमोरलाइज एनीबडी, बट बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव क्लासेस नहीं होती थी. मोस्टली की टीचर आए, उन्होंने पढ़ाया, जिसने पढ़ लिया इट्स गुड, जिसने नहीं पढ़ा देयर लॉस. बट यहाँ पे ऐसा है कि टीचर एक्चुअली इंटरैक्ट्स विद ईच वन ऑफ अस, और अगर आप नहीं भी करते हो ना, दे काइंड ऑफ प्रोवोक यू टू इंटरैक्ट. तो यहाँ पे इंटरेक्शन को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. इट्स नॉट अ बोरिंग क्लास की बस आए हैं और पढ़ा पढ़ा है और चले गए. इफ यू आर हम्म। नॉट एक्चुअली इंटरेक्टिंग इन द क्लास और कंट्रीब्यूटिंग, तो वो दिखता है यहाँ पे और फिर आपके असाइनमेंट्स पे वो नंबर आते हैं. बट टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव. अगर कोई शाय भी है ना, फॉर अ पर्सन लाइक मी, आई एम इंट्रोवर्ट पर्सन, तो मुझसे भी निकलवा लेते हैं कि पता लग जाता है कि शी इज ट्राइंग टू से समथिंग, तो उनको आता है कि इससे कैसे निकलवाना है. नाइस। मतलब हाँ, वो काफी अच्छा है. एंड ओके, तो शेड्यूल 9 to 6 है पूरा। लेक्चर्स कितने, एक लेक्चर कितने आवर्स के होते हैं? वन लेक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 hours, तो ओके। उसमें 2 घंटे चलता है एक लेक्चर. ओके। स्टार्टिंग में थोड़ा रखते हैं कि बच्चों को एकदम से ऐसा सडन शॉक ना हो, बट देन वंस यू सेटल इन, 9 to 6 इज द टाइम. ओके, सो आफ्टर द लेक्चर एंड बिफोर द लेक्चर व्हाट यू डू? हाउ इज द शेड्यूल? इट इज एक्चुअली अ बिजी स्केड्यूल ड्यूरिंग द स्टार्टिंग्स. अभी तो ऐसा है कि वी आर गिवन असाइनमेंट्स एंड स्टफ. स्टार्टिंग में तो मुंबई घूमे हम बिल्कुल. अच्छा था कि आए हैं तो पहले तो घूमेंगे. तो हाँ, ये या मैंने पूछा नहीं, हाउ डिफरेंट मुंबई यू, आई मीन इट हाउ इज गुड, आई मीन हाउ यू लाइक इट? लाइक पंजाब एक अलग है, फुल देसी टाइप है, एंड एब्सोल्युटली. मुंबई ऑल टुगेदर अलग या है। तो क्या आई एक्सप्लोर करके क्या क्या मतलब क्या डिफरेंट लगा? एक तो ये शहर सोता नहीं है. लाइक आई एक्चुअली गॉट टू एक्सपीरियंस इट माई सेल्फ कि सोता नहीं है बिल्कुल भी. किसी भी टाइम जा रहे हैं तो हमेशा यहाँ पे लोग रहते हैं. पीपल आर हम्म। वेरी हेल्पफुल हियर. वन थिंग दैट आई हैव नोटिस, मतलब आई वाज रियली न्यू टू द प्लेस और चीजें एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती है, बट पीपल आर सो सपोर्टिव हियर और हेल्पफुल है बहुत. रुक के भी आपकी हेल्प करेंगे, उनको लेट भी हो रहा है बट फिर भी आपकी हेल्प करके जाएंगे. एंड आई थिंक वेदर वेदर बहुत अलग है पंजाब से. यहाँ का हम्म। पानी हम्म। बहुत अलग है. आई एम नॉट यूज टू सॉफ्ट वाटर एट ऑल. तो मतलब इसमें थोड़े चेंजेस करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट अदरवाइज आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. वहां से आना और यहाँ पे आना इज लाइक टू डिफरेंट वर्ल्ड्स. हम्म। नाइस, यू आर बट एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग, यू आर या लर्निंग न्यू थिंग। एब्सोल्युटली. नाइस। ओके, सो आफ्टर 6 सोने का टाइम मिलता है कि नहीं? 6 to 8 hours? नहीं नहीं, सोने का टाइम मिलता है. इफ यू मैनेज योर प्लान, इफ यू मैनेज योर स्टफ एंड स्टडीज अकॉर्डिंगली, तो बहुत टाइम है सोने के लिए भी. ड्यूरिंग असाइनमेंट्स थोड़ा हो जाता है, बट आई थिंक अगर प्रायोर प्लानिंग है, प्रायोर साथ के साथ काम कर रहे हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनफ टाइम टू स्लीप. कभी कभी कैंसिल हो जाता है कोई लेक्चर, तो यू हैव इनफ टाइम. सो कैंपस पूरा घूम लिया अभी तक?
हाँ, कैंपस तो बहुत बहुत सही कैंपस है। मतलब जो मैंने पहले देखा था यूट्यूब वीडियोस पे और ऐसे, बिल्कुल मतलब जाओ तो कुछ और ही फील आती है। बिल्कुल ऐसे हम्म। इतनी ग्रीनरी है ऑल ओवर द प्लेस, इतनी ग्रीनरी है, एनिमल फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा एनिमल फ्रेंडली है। तो कैंपस तो बहुत सही है और बहुत इंक्लूसिव है, अलग अलग तरह के लोग हैं। There's बहुत इंक्लूसिविटी है इसमें। Nice, nice. I'm happy that you are happy. I am glad that you had confidence in me that I might be able to pull it, because I didn't had the confidence in me while I was giving my mock interview. But I'm really glad. Finally, you did it. Yeah. Yes. Nice. Okay. Anyways, on 23rd, I think I am coming to place only. I have Oh, one podcast with the analytics student. They have called me oh, over there. So their committee is there. They have called me over there. So आपकी भी जो कमिटी होगी उनको भी बोलो, they can connect to the team supports में, yeah, yeah, है ना? अभी आई हैड टेकन absolutely. वन, योर्स इज देयर, और सारे कोर्स को लेकर के इनसाइड आई एम कमिंग अप विथ। सो बहुत सारे जितने भी व्यूअर्स है यूट्यूब पे, जितने लोग देख रहे हैं, उन सबके लिए काफी एक एक डिटेल Absolutely. एक्सपीरियंस होता है। हाँ And I would also like to share one thing. हमारे batch में there is one other student as well from Maneuver itself. हाँ Like हाँ। we both were there. So, and also my senior is a Maneuver student as well. उनका नाइस ही podcast मैंने देखा था, and somehow now he's my senior. नाइस नाइस, नाउ यू विल Yeah. बी द सीनियर, दोज हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। Yeah. Yes, yes, absolutely. सो यू कैन आस्क देम, नो, सो आई विल टेक द Yeah. पॉडकास्ट ऑफ देम एज वेल, है ना? जितना Yeah, yeah. ज्यादा वीडियोस आएंगे, अपने सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। आई वॉन्ट Hmm. जितने भी यूट्यूब पे व्यूअर्स हैं उन सबको एक एक्सपीरियंस मिले, क्योंकि Yeah. आपकी तरह ही बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेट सिटी में बैठे हुए हैं, उनको भी टिस आना है। बिल्कुल, तो थ्रू यू बिल्कुल, दे विल बी इंटरैक्टिंग, दे विल बी लर्निंग, और उनके अंदर भी वो क्यूरियोसिटी आएगी, यार नहीं मुझे भी टिस जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। यस। ओके। Absolutely. या Yes. हरजोत, नेक्स्ट कमिंग टू दी सीयूईटी प्रिपरेशन, प्रिपरेशन Hmm. जर्नी के बारे में कुछ बताओ अपना, और क्या क्या ऑब्स्टैकल्स आए थे और Hmm. कैसे मैनेज किया? यू वेर वर्किंग दैट टाइम, राइट? Yeah, I was working that time. या। Uh, बहुत रोलर कोस्टर सा एक्सपीरियंस था टिस का प्रिपरेशन, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब टिस नेट के लिए स्टार्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी मैंने। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, समहाउ कैंसिल हो गया था टिस वो। नेट, या टिस नेट का प्रिपेयर करते 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 मिडल ऑफ द मिडल ऑफ द मंथ इट वाज लाइक आउट ऑफ नोवेयर देयर इज नो टिस नेट। और तब हाँ। सीयूईटी का भी वो उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दिया था, एंड इट वाज लाइक नो टिस नेट। तो हम्म एवरीबॉडी वाज लाइक, जिनसे भी मेरी बात होती थी सब काफी इंक्लूडिंग मी, काफी मतलब पैनिक का मोड क्रिएट हो गया था कि व्हाट, अब कर रहे हैं और अब जा भी नहीं पाएंगे। बट देन हम्म सीयूईटी का नोटिफिकेशन आया तो एज जैसे कि आपके सारे मेंटर्स ने, हम सबको मैनूवर के मेंटर्स ने बताया कि कीप ऑन प्रिपेयरिंग, कि कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन तो आएगा। हम्म आई केप्ट ऑन प्रिपेयरिंग, जो चल रहा था पहले वैसे ही। कंफ्यूजन बहुत सारा था कि व्हाट इफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा या ऑलरेडी जो उनका चल रहा है सिलेबस वो ही पूछेंगे। बट देन आई थिंक आप सबकी वजह से वी जस्ट केप्ट ऑन गोइंग अनलेस एंड until the notifications came out. तो हम्म। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड फॉर सीयूईटी। सेम ही सिलेबस था। तो जो भी मतलब क्लासेस में मैनूवर की पढ़ाया जाता था वो पढ़ते थे, बिकॉज मेरा क्वांट बहुत वीक था, तो मैंने क्वांट में बहुत ज्यादा टाइम दिया था खुद को, हम्म रादर देन कि मैं इंग्लिश में बहुत टाइम दूं या दूसरे सब्जेक्ट्स को। हम्म क्वांट मेरा काफी वीक था, तो मैं बार बार वो जो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस थे मैनूवर पे पोर्टल पे, वो देखती थी, फिर सॉल्व करती थी। नहीं होता था तो फिर डाउट सेशन भी होता था हमारा मैनूवर पे, वो बहुत हेल्पफुल रहा है। क्वांट में तो मतलब मुझे इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं किया। जो मैन्यूवर की बुक्स थी, जो प्रॉब्लम्स दिए जाते थे सॉल्व करने को, वो ही किए हैं मैंने। और मोस्टली क्वेश्चंस आए भी उसी में से। जब नाइस। मैंने सीयूईटी का पेपर दिया था सेम क्वेश्चंस ही थे, बस वही थे कि उनकी वो नंबर्स चेंज थे, हम्म। अदरवाइज सेम पैटर्न था क्वेश्चंस का। नाइस नाइस। हम्म। शेयर मी योर स्टेज टू एक्सपीरियंस। स्टेज टू एक्सपीरियंस कैसा था पैनलिस्ट के साथ? अभी तो वो आपके टीचर होंगे, राइट? पैनलिस्ट तो या टीचर ही है। वन ऑफ देम इज आवर टीचर। तब एक्चुअली मेरे पास ना स्टेज टू की प्रेपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई स्टेट एंट्रेंस एग्जाम एज वेल। बिकॉज ओके। क्योंकि ऐसा था कि एक
मुझे नहीं पता था टेस्ट होगा नहीं होगा, सो आई वाज प्रिपेयरिंग साइमल्टेनियसली। तो माय इंटरव्यू वाज शेड्यूल्ड ऑन 17th और ऑफ जुलाई, एंड मेरा जो स्टेट एंट्रेंस एग्जाम था वाज ऑन 15th। सो आई वाज ओके। रियली लाइक क्या प्रिपेयर करूं और कैसे करूं, बट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग ऑन 15th की इवनिंग आफ्टर द एग्जाम। तो हम्म। सबसे पहले एक्सटेम्पर के लिए मैंने प्रिपेयर किया था। तो जैसे कि मैनूवर पे बताया गया था कि ये टॉपिक्स रेलिवेंट है आपके लिए, जो भी हम्म। टॉपिक की लिस्ट दी गई थी मैंने वो प्रिपेयर की थी। और ऑल्सो द करंट अफेयर्स के रिलेटेड जो हेल्थ प्रॉब्लम्स थी या हेल्थ के रिलेटेड जो न्यूज आई थी वो मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। और उसके बाद हमारे मॉक इंटरव्यूज हुए थे आपके साथ, उसमें मुझे बहुत हेल्प मिली थी, क्योंकि मैं अगर कुछ प्रिपेयर कर रही थी या किसी और डायरेक्शन में जा रही थी, तो जो मॉक इंटरव्यू में था वो मुझे बताया गया था कि आप ऐसा नहीं ऐसा करो, ये प्रिपेयर करो, ये प्रिपेयर करने के बाद ऐसा बोलो। तो आई थिंक स्ट्रक्चर मिल गया था मॉक इंटरव्यू के बाद मेरी प्रिपरेशन के लिए। प्रिपेयर हम्म। मैंने बेसिकली बस वही किया था जो करंट अफेयर्स थे और जो एक्सटेम्पर का टॉपिक था उसी में से, जो भी हम्म। रेलेवेंट मेरे कोर्स के रेलेवेंट जो सब चीजें थी वो पढ़ी मैंने। और जो बस करंट अफेयर्स जो हेल्थ के रिलेटेड थे उस पे मैंने थोड़ा ज्यादा फोकस किया था। नाइस। पैनलिस्ट के साथ कोई एक्सपीरियंस याद हो, कोई क्वेश्चन पे यू वेर गॉट स्टक या आप नर्वस हो गया, ऐसा कुछ हुआ था? और हम्म, एवरीथिंग वाज स्मूथ, पैनलिस्ट वेर मच मोर आई मीन कंफर्टेबल, मैनेजेबल, बोलो, या तो फिर बहुत सपोर्टिव थे? हम्म। तो आई वॉज वेरी नर्वस बट पैनलिस्ट मेड मी रियली कंफर्टेबल, लाइक उनसे जस्ट पहली मुलाकात जैसे उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया ना, दे मेड मी सो कंफर्टेबल कि मेरी नर्वसनेस ही खत्म हो गई। तो उसके ओके। बाद इट एक्चुअली वेंट रियली स्मूथ, कि बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं आया, दे वर वेरी इजी गोइंग, उन्होंने टाइम दिया, इनफ टाइम टू स्पीक, इनफ टाइम टू थिंक। और कुछ नहीं भी आया तो उनका ऐसे कुछ एक्सप्रेशन नहीं था कि क्यों नहीं या क्या नहीं, और बट वो बहुत मतलब इजी गोइंग था मेरा इंटरव्यू जो मेरा सोशल एपिडेमियोलॉजी का था। पैनलिस्ट वर रियली गुड, उन्होंने बहुत कंफर्टेबल फील करवाया, और मतलब ठीक थे, जो भी अगर नहीं आता था ना दे हैड गिवन मी एनफ टाइम टू थिंक कि ओके यू थिंक एंड देन गिव अस द आंसर। तो अच्छा खासा टाइम स्पैन भी था इंटरव्यू का, इट वाज नॉट इन अ रश। Okay, nice. या Any question you remember which asked by the panelist? आई डू रिमेम्बर अ फ्यू। सो एक्सटेम्पर का टॉपिक याद है मुझे मेरा What was सोशल that topic? एपिडेमियोलॉजी का। इट वाज कि हाउ डू वी सी डिप्रेशन एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, सो आई हैड टू स्पीक ऑन इट। तो Wow, दैट वाज माय टॉपिक। nice topic. और मेरा जो इंटरव्यू था ना दैट रिवॉल्व बेसिकली अराउंड मेंटल हेल्थ, दिया तो मैंने सोशल एपिडेमियोलॉजी के लिए था बट इंटरव्यू रिवॉल्व अराउंड मेंटल हेल्थ। And मेंटल that is हेल्थ, the upcoming big problem coming या up in India, mental health, एब्सोल्युटली which people are एब्सोल्युटली, least considering कि ये कोई problem भी है, मतलब या exist भी करती है। तो I think this will be the upcoming, या disease you can say, yeah. absolutely. A few of the questions that I remember were they asked me the difference between mental health policy of 2014 and 2017. Yeah, Mm-hmm. like this was a little tricky question for me, though I had prepared for it, but I was like, okay, what is it? I had given the answer, but I was not sure only. So later on you checked the Yeah, later on I did check, it was correct, but their expressions were like, okay, let's see. Yeah, why they were so much specific to 2014 and 17? कुछ था कि year yeah, specific पूछा? actually, yeah, because during my extemper of depression, no, I mentioned the policies of 2014 and 2017. So Okay, that is why they asked me the difference. What is actually the difference in 2017, which was not in 2014? correct. So I all the also viewers, remember, those who are watching this podcast, I want to mention here, whatever you will be writing in your, yeah, DAF, absolutely, from absolutely. there, surely you will get the question. So Yeah, yeah. whenever you will be filling your DAF, although we will be guiding you for the same, Hmm. so don't need to worry, but जो भी आप DAF में fill करोगे, be ready for it. वहां से क्वेश्चन बनेंगे। बिल्कुल। ऑल्सो अपने कोर्स का नॉलेज जो आपने बैचलर्स में कर रखा है उसके जो सब्जेक्ट्स भी मेंशन करोगे ना, दे जस्ट दे प्ले अ रियली इंपॉर्टेंट रोल आपके इंटरव्यू में, बिकॉज वो कोई भी सब्जेक्ट उठा के पूछ लेते हैं कि इसमें आपने क्या किया था और इसमें ऐसा क्यों है। तो आई हम्म। थिंक सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज जो ऑलरेडी आपने कर रखा है उसका भी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है पैनलिस्ट करेक्ट। के साथ। वन अनदर क्वेश्चन दैट आई रिमेम्बर वाज कि बच्चों में शिज़ोफ्रेनिया इतना ज्यादा क्यों होता है।
So the Okay. causes of schizophrenia in children, young children. Hmm. तो ये ही याद है अभी मुझे। और तो या आशा वर्कर्स के बारे में पूछा था मुझसे। Okay. Okay. सो बेसिकली मेरे कोर्स स्पेसिफिक था, और मेरा क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड है तो उसके रिलेटेड ही मेरे से चीजें पूछी गई थी। तो आई थिंक कोर्स स्पेसिफिक चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, या जो भी आपका बैकग्राउंड है उसके रिलेटेड ज्यादा पूछी जाती हैं चीजें। बाकी Oh, आई थिंक एक दो बेसिक सवाल भी थे कि व्हाई आई वुड वांट टू जॉइन सोशल एपिडेमियोलॉजी, और वेयर डू आई सी माई सेल्फ इन 5 years। ये दो क्वेश्चंस भी थे। okay. How much importance or what role play you can say of the maneuver mock interview and the extemper had played in your actual interview round and the extemper? It was extremely important to me. Had I not given the mock interview, I don't think I would have been here in TESS, because it Okay. was a first professional interview of my life with, having a Oh, panelist and stuff. Like I had given job interviews before. It was nothing like job interview. It is like for a oh. proper university, a panelist members will be sitting and all. So I was really nervous. But before that, because I had a mock interview with you itself, so my nervousness and that kind of things that I was not doing properly, you told me कि do this do that, ऐसा नहीं वैसा करो। तो इंटरव्यू में बहुत वो रिफ्लेक्ट करता है कि जब आपने ऑलरेडी किसी के साथ एक मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस किया होता है, तो इंटरव्यू में वो तरीका, बोलने का तरीका, थोड़ा बैठने का या कुछ भी पूछने का, वो बहुत रिफ्लेक्ट करता है। बहुत हेल्पफुल था मुझे तो। अ, मेरे लिए तो पर्सनली अगर मैंने नहीं दिया होता मॉक इंटरव्यू तो मेरा तो ये नहीं होता। Okay, nice, great. Last question, Harjot. हम्म। What tips or the session you want to give to upcoming year aspirant? See, now you are giving tips to the aspirant. Yeah, I never thought of that. Those who But are targeting TIS में आना है, तो right from the CVT preparation to the stage 2. हम्म, बिल्कुल आई थिंक जस्ट कीप योर सेल्फ फोकस्ड कि जो चीज करनी है बस वही करनी है, रादर देन एंटिसिपेटिंग होगा या नहीं होगा। वो बहुत बात की बातें आती है, बिकॉज ड्यूरिंग आवर जर्नी ऑल्सो जब हम स्टार्ट ही करते हैं ना प्रिपेयर, हमारे दिमाग में पहले ही आ जाती है ये चीज कि हम होगा या नहीं होगा। और Hmm. नेगेटिव एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा जल्दी आते हैं, तो वो प्रेपरेशन को बहुत अफेक्ट करता है। रादर देन जस्ट कीप गोइंग ऑन, जो होगा वो देखा ही जाएगा, बट ट्राई टू गिव योर बेस्ट। जो सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं, लाइक मेरा क्वांट वीक था तो मैंने क्वांट को ज्यादा टाइम दिया था, अलॉट मोर टाइम टू सब्जेक्ट्स यू थिंक दैट यू आर वीक इन। और अपनी मतलब जीके तो है ही इम्पोर्टेंट, जीके आए तो मोस्टली क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं कि आता है तो उसके आंसर मिलेगा ही, मार्क्स मिलेंगे ही। सो ऐसे कुछ मतलब सब्जेक्ट्स हैं कि आप उनको करो तो आपके शॉर्ट शॉर्ट मार्क्स आएंगे। आई थिंक फोकस्ड प्रेपरेशन इज समथिंग बहुत जरूरी है, और मतलब कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है उसमें। आज कर Okay. लिया कल नहीं किया, ऐसा नहीं Hmm. होना चाहिए। थोड़ा करो बट रोज करो। उसके Hmm. बाद तो आई थिंक ऑब्वियसली हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। इफ आई थिंक मुझे नहीं पता, बट मुझे खुद को देख के भी कभी कभी यकीन नहीं होता कि कहाँ मतलब टेस्ट सोचा भी नहीं था, एंड ऑल ऑफ अ सडन, बिकॉज इट इज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क हैज टू प्ले अ रियली इंपॉर्टेंट रोल। Hmm. मेहनत, बस वही मेहनत ही है इसमें, और तो कुछ भी नहीं है। फॉलो वेरियस चैनल्स जो जैसे करंट अफेयर्स के आते हैं, मैनूवा पे क्विजेस भी होती हैं, तो उससे बहुत पता लगता है कि अपनी तैयारी हो रही है या नहीं हो रही। और मॉक टेस्ट देने चाहिए, मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करते हैं, आपको पता लगता है कि किस डायरेक्शन में आप लोग जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कितने मार्क्स आ रहे हैं। बट सिर्फ मॉक टेस्ट से वो निराश नहीं होना, क्योंकि अगर वहाँ उसमें नंबर नहीं भी आ रहे हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट तो डिफिकल्ट लेवल ही बनाया जाता है उसका। Hmm. पेपर इज एक्चुअली, पेपर का जो लेवल है वो उससे तो कम ही होता है हमेशा। Hmm. बट मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करते हैं, आपको पता होता है कि अगर ये मैं कर भी रहा हूँ और ये अच्छा जा भी रहा है या नहीं जा रहा, तो वो सब्जेक्ट वाइज बहुत रिफ्लेक्ट करता है अपने मॉक टेस्ट पे। और अब मैनूवर के मॉक टेस्ट तो टाइम बाउंड है, तो उससे बहुत पता चलता है कि ओके ये आता था बट फिर भी नहीं हो पाया क्योंकि इतना टाइम बाउंड है। आई थिंक Correct. दैट इज रियली So, हेल्पफुल। yes, so lot more thing we have understood in this podcast. Harjot explained everything right from the CVT preparation to the TIS selection stage 2, and right now she is in TIS. So all the या viewers, those who are watching this podcast, you can also be the part of TIS. Prepare well and share थैंक this यू। podcast, like this podcast,
to everyone, those who want to get into the test for the same course or the other courses. And if you will get into the test, Harjot will be your senior. You Yes. can connect with her on LinkedIn. Yes. LinkedIn, you are there on LinkedIn, right? Yeah, I am. Yeah. So she will help you people as Yes. well. Okay. Absolutely. Yeah. Thank you, Harjot, for coming and sharing your experience, and all the very best for your career. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you.